Hello student, welcome to online teaching by UP Singh. Today student, I am going to teach you a new topic, means that I am going to start new chapter, quadratic equation. So first of all, you have to know what is quadratic equation. So look at here, definition is here. If p of x is a quadratic polynomial, then p of x is equal to 0 is called a quadratic equation. General form of quadratic equation will be here x square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real number. This is the symbol belongs to real number, and a not equal to 0. Here I have mentioned this symbol belongs to. Okay. In other words, this can be defined an equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real number and a is not equal to 0 is called quadratic equation. Look at here, I have taken some example. Your first example, x square plus 2x minus 3 equal to 0. Okay. Second example, x square plus 2x is equal to 0. And third example, x square minus 4 equal to 0. Here coefficient of x square should not be 0. Okay. So all these examples are belonging to quadratic equation. Understood? Here student, there are some methods for solving quadratic equation. I have written here some methods. First one is here by factorization method. Second one, method of completing the square. And third one, quadratic formula. I will explain one by one method in coming video. So today I will mention factorization method. Okay. Before starting the factorization method, you have to know how many roots of quadratic equation. Roots means solution or zeros of quadratic equation. Okay. So let us see. This is quadratic equation, therefore there are two roots of quadratic equation. First one is alpha, okay, and second one is beta. You have already studied earlier in quadratic polynomial, so there is no any changing about roots. So here the roots, first one alpha and second one beta. Therefore sum of roots is equal to minus b by a, and product of root is equal to c by a. Understood? These are two roots who are solution of the variable of quadratic polynomial or solution of quadratic equation. Now let us see how can you solve quadratic equation by factorization method. Here I have taken two questions. First one, 6x square minus x minus 2 equal to 0. Second one is here under root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. Find the roots of quadratic equation.
Roots means you have to find alpha and beta. Okay. Now look at here. How can you do this? Here the first question, 6 square minus x minus 2 equal to 0. Split the middle term. You know how can you split the middle term? Here I have mentioned, this is the rule, a plus b and ab. a plus b क्या है? यहाँ पर माइनस 4x प्लस 3x अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आएगा, और माइनस 4x इंटू 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 12x स्क्वायर. ओके, सो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन लेंगे, देन इट विल बी 3x माइनस 2 इंटू प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. In next step, it will be 3x minus 2 into 2x plus 1 equal to 0. अब यहाँ क्या करेंगे? दो फैक्टर है, एक है 3x minus 2 और दूसरा है 2x plus 1. प्रत्येक फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे. So 3x minus 2 equal to 0. This is the first factor. Look at here. This implies 3x is equal to 2. Therefore x equal to 2 by 3. Other factor here 2x plus 1. So also equate it by 0. 2x plus 1 equal to 0. This implies 2x is equal to minus 1. Therefore x equal to minus 1 by 2. Here the roots are 2 by 3 and minus 1 by 2. So these are alpha and beta also. Understood? Second, मैंने जो क्वेश्चन लिया है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. इसका भी मिडिल टर्म स्प्लिट करो. इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसा कि मैं यहाँ दिखाया हूँ. अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. अब इस 10 को आधार मानकर, ठीक है, ऐसे भी 10 का फैक्टर निकालो. क्या क्या होगा? 1 2 5 10. अब यहाँ पर हमें दो ऐसा नंबर मिला जिसको अगर मैं ऐड करूँ तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाए. वह कौन नंबर है? 2 और 5 है. तो इस 2 को हम ऐसे लिख देंगे 2x और 5 को प्लस 5x. देन इट विल बी हियर 7x. ओके, अंडरस्टूड? नाउ राइट डाउन दिस 7x in this way. Plus 2x plus 5x plus 5 root 2, it will be as usual is equal to 0. Take here common under root 2x. यहाँ पर अंडर रूट 2x कॉमन लिया गया तो यहाँ क्या होगा? x प्लस रूट 2. अब यहाँ 2 लाना है और बाहर में रूट 2 है, तो रूट 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आ जाएगा. रूट 2 में अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा. अंडरस्टूड? यहाँ देखिए, ठीक है. तो इसलिए मैंने यहाँ रूट 2 लिख दिया. तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना, इंटू एक्स. 5 यहाँ कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेने के बाद क्या होगा? x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. अगेन हियर इन बोथ साइड x प्लस रूट 2 इज कॉमन. अगेन टेक कॉमन x प्लस रूट 2. देन इट विल बी रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. पुनः क्या करेंगे? दो फैक्टर मिला हमको, प्रत्येक फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में. x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 सॉरी, एंड और रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2. तो यहाँ पर क्या हुआ? ये दो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हो गए. अब मैं जो वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन लिया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. और वह क्वेश्चन क्या है पहले हम लोग देखते हैं, इसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे.
फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो मैंने लिया है वह है वर्ड प्रॉब्लम से, फाइंड टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यहाँ एक वर्ड आया है कंजुकेटिव, इसे हमें समझना है क्या होता है कंजुकेटिव। सो मैंने यहाँ पर काउंटिंग नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ओके, दीज नंबर्स आर कंजुकेटिव फॉर्म। लुक एट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर क्वेश्चन में 2 और मोर देन 2 कंजुकेटिव नंबर लिखने के लिए आ गया तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1 के बाद 2 है, तो 1 में कितना मैं ऐड कर रहा हूँ, +1 तब 2 मिल रहा है नेक्स्ट कंजुकेटिव। फिर 2 में मैं जब फिर अगेन 1 ऐड कर रहा हूँ तो अगला जो कंजुकेटिव है वो 3 है, वो 3 मिल रहा है। फिर नेक्स्ट जो कंजुकेटिव के लिए फिर अगेन 1 ऐड करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बार कंजुकेटिव प्राप्त करने के लिए 1 1 ऐड करना पड़ रहा है। तो अगर फर्स्ट के पोजीशन पर जो मेरा फर्स्ट नंबर है, इसके पोजीशन पर अगर मैं x मान लूँ, मीन्स दैट फर्स्ट कंजुकेटिव नंबर इज x। तो अब बताइए कि सेकेंड कंजुकेटिव नंबर लिखेंगे तो क्या होगा, x + 1 होगा, क्योंकि हर बार कंजुकेटिव प्राप्त करने के लिए 1 1 ऐड करना पड़ रहा है। नेक्स्ट थर्ड अगर हम कंजुकेटिव नंबर लिखेंगे तो पहले से 2 के बाद 3 आना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + 1 + 1 मीन्स दैट थर्ड कंजुकेटिव के लिए x + 2 करना होगा। इसी तरह 4 कंजुकेटिव करेंगे तो x + 3 करना होगा। तो यहाँ एक ट्रिक आया कि जितना भी कंजुकेटिव नंबर पूछेगा, ठीक है, उसमें 1 1 1 1 ऐड करना है नेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछ दिया डायरेक्ट कि 7 कंजुकेटिव नंबर कौन होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, x + 6। इस सिस्टम से हमको यही पता चला कि जो नंबर कंजुकेटिव पूछेगा उसको एक कम लिखना है। जैसे 3 थर्ड कंजुकेटिव x + 2 हो रहा है, एक कम है, देखिए। सेकेंड कंजुकेटिव x + 1 हो रहा है, 1 कम हो रहा है। समझ में आ गई बात? इसी तरह का और भी क्वेश्चन आएगा जो मैंने आगे लिखा है। अगर क्वेश्चन में आ गया 3 कंजुकेटिव इवन नंबर्स, तो फिर कैसे लिखा जाएगा? तो फिर यहाँ आते हैं हम, जो नंबर मैं लिखा हूँ इवन नंबर, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद 8 हो रहा है। तो फिर देखिए +2 जब ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट कंजुकेटिव इवन नंबर मिल रहा है, इसमें फिर +2 कर रहे हैं तो हमको 6 मिल रहा है, फिर +2 कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है। तो इस तरह से अगर 3 कंजुकेटिव नंबर लिखना है तो फर्स्ट कंजुकेटिव अगर हम x लिखते हैं तो सेकेंड कंजुकेटिव प्राप्त करने के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, हर बार 2 ऐड करना पड़ेगा इवन में। तो सेकेंड हो जाएगा x + 2, थर्ड हो जाएगा x + 4। समझ में आ गई बात? तो इस तरह अगर कोई क्वेश्चन में कहता है कि 3 कंजुकेटिव इवन नंबर, 3 कंजुकेटिव ऑड नंबर अगर पूछते तब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 3 कंजुकेटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए थोड़ा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस तरह नंबर है मेरा, ठीक है। ऑड स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 के बाद नेक्स्ट जो कंजुकेटिव ऑड में आएगा वो 3 हो गया, फिर 5 होगा, ठीक है। अगला अगर आप लेते हो 7 हो जाएगा यहाँ, तो 7 होगा। तो फिर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट के बाद नेक्स्ट कंजुकेटिव ऑड के लिए फिर यहाँ भी 2 2 ऐड करना पड़ रहा है, देखो आ रहा है ना 2 2। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट कंजुकेटिव ऑड नंबर्स मानते हैं कि x है, तो सेकेंड कंजुकेटिव ऑड के लिए क्या करना होगा, सेम टू सेम लाइक एज एबव +2। थर्ड के लिए क्या करना होगा, इसमें भी +2,
कर दीजिए। x + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑड और इवन अगर क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। हम लोगों ने जो रूल पढ़ लिया उसके आधार पर मैं इस वर्ड प्रॉब्लम को अब सॉल्व करूँगा। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। फाइंड 2 कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. ओके, let us see the answer of this question. How can you do this? First of all, let the first conjugative positive integer is equal to x. Then second conjugative positive integer will be here x plus 1. अभी जस्ट हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे 1 ऐड होता है। ओके, इसमें अब कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर का सम कितना दिया है, 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। नाउ एक्सपेंड दिस x plus 1 whole square, then it will be x square plus x square plus 2x plus 1 minus 365 इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसपोज करने पर माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। फिर अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कॉमन 2 ले रहा हूँ। 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। So therefore x square plus x minus 182 equal to 0. This is the final quadratic equation. अब इसका भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मैंने यहाँ जैसा कि किया है, 14x माइनस 13x इट विल बी प्लस x एंड 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस में, तो माइनस 182 आ जाएगा। अगेन ये दोनों टर्म में मैंने x कॉमन ले लिया, तो x इंटू एक्स प्लस 14, यहाँ मैंने 13 कॉमन लिया, माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। अगेन कॉमन क्या है, एक्स प्लस 14 बोथ साइड देखिए, तो फिर से कॉमन लो एक्स प्लस 14, देन इट विल बी एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर यहाँ बन गया, प्रत्येक फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे। एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस 14। इसको नेग्लिजिबल कर देना है क्योंकि हमारा पॉजिटिव इंटीजर आंसर लाना है। दूसरा जो फैक्टर है उससे मैं निकालता हूँ क्या वैल्यू आता है, x minus 13 equal to 0, therefore x equal to 13. So here first conjugative number is 13 and second conjugative number होगा x plus 1 है second, put here the value of x in 13, then it will be 13 plus 1 is equal to 14. Understood? How can you do this? Thank you. Have a nice day. Your homework is exercise 4.4 NCERT book.